Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll be learning the major cropping pattern and the major crops of India. Continuing with our chapter number 4, which is all about agriculture. Okay, so in my previous video I have shared the concept what is agriculture and why is it important for us or for the country India. Okay. Now in this video we'll be discussing the cropping pattern. By the cropping pattern I mean कौन से सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है. ओके, हम तीन मेजर क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे इंडिया का. When we talk about India, we have three major cropping pattern. One is Rabi, Kharif and other is Zaid. तो तीनों क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे. बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि ये जो क्रॉप्स हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न एक पर्टिकुलर सीजन में उगाई जाती है, कौन से महीने में उगाई जाती है, कौन से महीने में इनको निकाला जाता है या हार्वेस्ट किया जाता है, कौन से इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, कौन से रीजन में आती हैं एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर दिस क्रॉप्स. ओके, सो विल बी डिस्कसिंग ईच पैटर्न इन ब्रीफ. So talking about Rabi crops first. So these are the crops which are grown in winters. Okay, from October to December. Now there is a trick for you all to learn this. जैसे कि जलेबी और रबड़ी सर्दी में खाना पसंद है, गरम गरम जलेबी के साथ रबड़ी हो तो मज़ा आ जाता है. Therefore from रबड़ी you can take out the word Rabi. Winters में जो crops उगाई जाएंगी that crops will be called Rabi crops. Okay, and obviously winter months क्या है, from October to December. So this was one trick that I followed during my time to learn the pattern, and similarly you can have your own trick or follow the same trick that I have given to you guys. Okay, so Rabi crops are the crops that are grown in the winters. जो सर्दियों के टाइम पे उगाई जाएंगी in the months of from October to December. सर्दियों के महीने में जब उगाए जाएंगे from October to December, that crop will be called as the Rabi crop. Okay, now the second question is when these crops are harvested. Obviously 2 to 3 months तो लगेंगे आराम से. Okay, और more than 2 to 3 months भी हो जाएगा अगर अक्टूबर से काउंट करें and till June almost around 6 months होने को आते हैं हमारे. Okay, more than 6 months. Therefore तो उतना गैप रख के अगर आप काउंट करोगे तो हार्वेस्ट सीजन भी निकाल पाओगे इनका. तो हार्वेस्टेड मंथ्स कौन से होंगे, कब ये फसल काटी जाएंगी, पक के पूरी तैयार हो जाएंगी. इट विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून. ओके, अप्रैल टू जून के महीने में ये फसल पक के तैयार हो जाती है एंड आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स. ओके, देन वी हैव द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स. भाई इस सीजन की इम्पोर्टेंट फसलें कौन सी हैं, कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं. So guys, learn the example of each crops very carefully because these are the probable question for 1 mark. Okay, so talking about the important crops of Rabi pattern, we have wheat, barley, peas, grams and mustard. In this, there is nothing to explain. All you need to do is you need to learn and memorize the name of the important crops. गेहूँ हो गई है, सरसों हो गया है, दाल हो गई है. तो these are some of the crops which are the example of Rabi crops. Okay, and one need to memorize it, learn it. Okay, next talking about the region, which are the states where these crops are found. Okay, or this is the cropping pattern the state follows. Okay, the states of north and northwestern region. जब मैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करती हूँ, इट मीन्स इट इज़ टूवर्ड्स आवर साइड. ओके, नॉर्थ रीजन में आती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ वेस्टर्न में टूवर्ड्स द राजस्थान साइड. ओके, नाउ लेट्स सी द स्टेट्स. So talking about the north and northwestern states, again we have Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand and also some part of western Rajasthan. Okay, why these crops are grown in winter season? एक क्वेश्चन आ सकता है
राबी क्रॉप्स विंटर्स में ही क्यों उगाई जाती हैं? एंड द आंसर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, साइक्लोन्स आते हैं टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। ओके, वर्ल्ड की वेस्टर्न साइड में तो हम बात करते हैं, उस साइड से हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं ड्यूरिंग विंटर्स which are in the form of cyclones। ठीक है, साइक्लोन आएंगे जिसकी वजह से बारिश आती है। एंड दिस became suitable for the growth of rabi crops in the north and northwestern regions। Okay, so again I am repeating, availability of precipitation। Precipitation means here we are talking about rainfall only। बारिश होती है हमारी in winter months, और winter months में बारिश क्यों हो रही है? Due to the western temperate cyclones। Okay, now while discussing the rabi crops, let's go back into the time of 1960s। Okay, when we had the green revolution। तो सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी इन्हीं रीजन्स में हुई थी, इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, वेयर इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स वर ग्रोन एंड द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स वर डबल्ड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ स्पेसिफिक रीजन में, ताकि हम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को इंक्रीज कर सकें। ओके, टेस्ट करने के लिए कि क्या सक्सेसफुल रहेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बहुत सारी न्यू टेक्निक्स स्टार्ट की थी एग्रीकल्चर के अंदर, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए थे, HYV सीड्स लेके आए थे एंड मेनी मोर। ठीक है, जिससे कि फसल की प्रोडक्शन डबल हो जाए। तो तब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तब इन्हीं रीजन में सबसे पहले लाया गया था, इन द रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, टू टेस्ट भाई क्या ये सक्सेसफुल रहेगा। एंड द रिजल्ट वॉज very successful result, and the production of the crops were doubled, and these crops were again the important rabi crops like wheat, gram, mustard, etc. Now let's discuss next cropping pattern, which is all about the kharif crops। Talking about the kharif crops, these are the crops which are grown during the onset of the monsoon। मॉनसून इंडिया में कब आता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जून। देयरफॉर समर्स में लगाई जाएंगे ये क्रॉप्स। ओके, एंड टुवर्ड्स द कमिंग ऑफ विंटर्स इनको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो खारिफ की एक और ट्रिक है लर्न करने के लिए कि गर्मी में बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, राइट? देयरफॉर खारिफ क्रॉप्स, खारिफ, खुजली एंड खारिफ, दीज आर ऑल द वे सिमिलर रिलेटेड वर्ड्स। सो आप लर्न कर सकते हो कि ये जो खारिफ, जो खुजली कब होती है? समर्स में। देयरफॉर खारिफ क्रॉप्स कब लगेंगे? समर्स में। ओके, सो दिस वाज अनदर फन ट्रिक हाउ यू कैन लर्न द वेरियस पैटर्न्स इन ऑफ क्रॉपिंग। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक्स इन वेरियस अदर सब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू लर्न several concepts and several things। Now coming back to our main topic, which is the kharif crops, let's discuss when they are grown। So they are grown on the onset of monsoon in different parts of nation, basically in around or in the month of June। Okay, because this is the time when monsoon starts coming into our nation। Now let's talk about when these crops are harvested। These crops are harvested in the months of September to October। Okay, and now let's discuss what are the important crops। Important crops की जब बात करते हैं तो इसके अंदर आती है पैडी, विच इज राइस ओनली, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर वाली दाल, मूंग दाल, उड़द की दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन एंड मेनी मोर। Okay, so these were the example of the kharif crop। Again, learn these examples as these are very important। Okay, either you can get a question to distinguish from the above crops on the basis of their pattern, rabi, kharif या zed। आपको क्रॉप्स के नाम दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनमें से खारिफ क्रॉप्स को अलग निकालो, जैद को अलग और राबी क्रॉप्स को अलग। या फिर सीधा ही डायरेक्टली दे कैन आस्क यू द एग्जाम्पल टू राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप्स or rabi crops or zad crops। Okay, therefore learning the important crops of each pattern is very important।
Now let's see the regions where we have the regions where the important kharif crops are grown. Talking about important kharif crop, which is paddy or rice. Okay, so let's see the important rice growing region. कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ चावल उगाए जाते हैं? It is in the region of Assam, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, coastal region of Odisha, Kerala and Maharashtra. So these are the important rice growing region जहाँ चावल की फसल उगाई जाती है. Okay. कि असम, बंगाल और उड़ीसा के रीजन में साल में एक बार ही उगाई जाती है राइस. ओके, चावल की तो बात करें, साल में एक बार ही उगाया जाएगा. बट दीज आर इन द रीजन और द सीजन्स ऑफ अस, अमन एंड बोरो. ओके, अस का मतलब है इन द मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त, अमन का मतलब है इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू जैन एंड बोरो मीन्स इन द मंथ ऑफ मार्च टू मई. ओके, तो ये कुछ ऐसे महीने हैं जहाँ डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट टाइम पे राइस उगाती है. ओके, सो अस, अमन एंड बोरो आर द मंथ्स suitable for rice cultivation. Okay, and lastly we have the zaid crops. Okay, खारिफ कर लिया, राबी कर लिया, तो कुछ क्रॉप्स है जो विंटर्स में उगाए जा रहे हैं, कुछ क्रॉप्स है जो समर्स में. सो बेसिकली इन इंडिया वी हैव ओनली 2 मेजर सीजन जो कवर हो गया, सर्दी और गर्मी. अब सर्दी और गर्मी के बीच में तो कोई टाइम रहता होगा, ओके, जो ना तो ज़्यादा गर्मी का है ना ज़्यादा सर्दी का है. सो दिस इज द राइट सीजन टू ग्रो दीज zaid crops. ओके, सो सिमिलरली द ग्रोइंग टाइम when these crops are grown, these are grown in between the season of rabi and the kharif crops. Okay, राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स के बीच में छोटा सा टाइम पीरियड आता है, समर मंथ्स ही कह सकते हैं उनको, जब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है. ओके, सो ड्यूरिंग दिस सीजन वी कैन ऑलवेज गो फॉर ग्रोइंग अप द zaid crops. ओके, सो देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स which is a transition period from summers to winters. Okay, ये वो महीने हैं जब हम ट्रांसफर हो रहे होते हैं फ्रॉम समर सीजन्स टू विंटर सीजन. ओके, दिस शॉर्ट सीजन इज नोन एज zaid. ओके, सीजन इज कॉल्ड zaid season where we grow the zaid crops. Okay, now again a trick to learn this. Suppose zaid is the name of a boy. वो लड़का जिसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, एंड ऑल्सो दिस बॉय इज वेरी हार्ड वर्किंग. अपने खेत से जाके फॉडर क्रॉप्स लेके आते हैं अपने एनिमल्स के लिए. ओके, जो उसने गाय भैंस रखी है उनके लिए. सो zaid क्योंकि एक लड़का है और उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल पसंद है, मेहनती है और फॉडर क्रॉप्स भी लेके आता है, देयरफॉर zaid नाम तो हो गया क्रॉपिंग पैटर्न का. एंड इससे आपको पता चला इसकी पसंद से कि zaid क्रॉप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है मेजरली, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड द फॉडर क्रॉप्स. ओके, फॉडर क्रॉप्स क्या, जो खेत में लगाते हैं हम अपनी गाय भैंसों के लिए. दीज आर दी फॉडर क्रॉप्स जो उनको फीड करने के लिए हम रखते हैं. ओके, तो आपको पता चल गया कि zaid एक ऐसा सीजन है जहाँ वेजिटेबल, फ्रूट्स और फॉडर क्रॉप्स उगाए जाते हैं. ओके, example of zaid crops are watermelon, muskmelon, cucumber, etc. Okay, various other vegetables you can write down here as the example of zaid crops. Okay, now after understanding the cropping pattern in India, कि कौन-कौन से सीजन में कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती है, let's see what are the major crops in India. Okay, उससे पहले आपको ये तो बात पता होगी, इंडिया एक वास्ट कंट्री है. ओके, डाइवर्स नेशन है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के कल्चर प्रैक्टिस होते हैं यहाँ. ओके, देयरफॉर इंडिया बीइंग अ डाइवर्स नेशन वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. हमारे पास बहुत अलग अलग डिफरेंट वैरायटी है व्हेन इट कम्स टू द क्रॉप्स. ओके, द वैरायटी ऑफ दीज क्रॉप्स आर ग्रोन एट डिफरेंट टाइम पे ग्रो की जाती है, डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो की जाती है, depending upon how the soil is, how the climate is, how the temperature is there, or what are the cultivation practices that people follow.
एक किसी फसल को उगाने के लिए जब हम मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया कर रहे थे तो हमने बात की थी अलग अलग सॉइल की अलग अलग क्वालिटी है, ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन दोज क्वालिटी क्रॉप्स उगाई जाएंगी, ओके। तो ये जो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हम डिफरेंट रीजन में ग्रो करते हैं अपने इंडिया में, इट डिपेंड्स कि कैसा सॉइल है, टेम्परेचर क्लाइमेट क्या फेवरेबल है उस फसल के लिए, कौन सी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस वो यूज करते हैं। सो दीज आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द मेजर क्रॉप्स ऑफ आवर नेशन डिपेंड्स, ओके। So talking about the example of major crops of our nation, these are rice, wheat, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, millets, cotton, jute, etc. Okay, so these are some of the important examples of our major crops, and now we'll be seeing each major crop in brief and understand what are the different conditions, what are the regions, what are the cultivation practices, climate or temperature requirement for this particular crop. So let's discuss some of the major crops, and number one we have the rice. Okay, जब हम चावल की बात करते हैं पहले सिंपल सा समझते हैं। चावल आपने देखा होगा ऑल ओवर इंडिया पीपल आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग ओनली, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो चावल खाता होगा, ओके। देयरफॉर चावल एक स्टेपल क्रॉप बन जाएगा। स्टेपल मतलब जो ऑन डेली बेसिस लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं, ओके। फिर हम बात करेंगे कौन सी टाइप ऑफ क्रॉप है ये, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी रेनफॉल होगी, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस देखेंगे, और बेसिकली कौन कौन से रीजन्स हैं जिनमें ये उगाई जाती हैं। रीजन तो आपको अभी तक पता चल गया होगा जब हमने इंपॉर्टेंट राइस कल्टीवेशन एरियाज किए थे। सो रीजन्स तो आई होप यू आर अवेयर, बट स्टिल विल डिस्कस इट वन मोर टाइम, ओके। So talking about rice, it is the staple crop of majority of people. मतलब majority of population in India likes to have rice. Okay, चावल खाना पसंद करती हैं. So this line is again very important. Rice की जब हम बात करते हैं, India is the second largest producer of rice after China. So this is again a probable question which comes in your exam. पूछ सकता है कि leading producer of rice कौन है? China. सेकेंड प्रोड्यूसर, इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके, व्हेन इट कम्स टू द कल्टीवेशन ऑफ राइस। देन राइस कौन सा क्रॉप है? राइस इज अ खारिफ क्रॉप, ओके, आपको लिखना ही लिखना होगा इसके अंदर। देन राइस बीइंग अ खारिफ क्रॉप रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? मतलब अच्छा गर्मी वाले चाहिए, विच इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से ऊपर का तापमान चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल, पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है राइस में, ओके, क्योंकि आपने अभी सुना होगा, जैसे एग्जाम्पल है छोटा सा रिलेट करने के लिए याद रहे कैसे, जैसे अभी अखबार अगर पढ़ते हो आप, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो, उसमें आ रहा था अभी राइस कल्टीवेशन को अवॉइड करो क्योंकि वाटर टेबल डिक्रीज हो गया है हमारे हरियाणा स्टेट में, ठीक है। तो राइस की जगह आप कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो। तो राइस का मुद्दा क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर करता है, ठीक है। तो जब हम रेनफॉल की बात करेंगे इन केस ऑफ राइस, तो रेनफॉल कितनी होगी? अबव 100 सेंटीमीटर्स, ओके। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर थिंग्स हैपनिंग इन योर सराउंडिंग। थोड़ी सी अवेयरनेस से रहोगे तो आपको चीज़ें लिंक करनी आ जाएगी, रिलेट करनी आ जाएगी, और ये चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी लर्न करने के लिए, ओके। तो फिर से हम इसकी कंडीशन रिवाइज करेंगे। क्या कंडीशन है? इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर विच इज अबव 25 डिग्री, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल विच इज अराउंड अबव 100 सेंटीमीटर्स, ओके। ऑल्सो हमने तब राइस कल्टीवेशन एरियाज के बारे में बात की थी, तो हमने बात की थी जैसे पंजाब हरियाणा में भी राइस कल्टीवेशन होती है, ओके। सो जैसे कि कुछ एरियाज हैं जहाँ रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती है विच इज़ अबव 100 सेंटीमीटर, तो उस जगह पे राइस कल्टीवेशन कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं और वेरियस अदर मैकेनिज्म जिससे वो पानी ला सकते हैं अपने खेत तक, तो उसकी वजह से वो राइस कल्टीवेट कर पाते हैं। सिमिलरली दिस लाइन इज द सेम, एरिया विद लो रेनफॉल, और उस एरिया में द राइस कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, okay. Now talking about the regions, rice is grown in the areas of plains of northeastern India,
कोस्टल रीजन एंड डेल्टिक रीजन। ओके, सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से एरिया है। नॉर्थ में कौन सी रीजन आएंगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एंड टुवर्ड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न हाफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन वाले रीजन में। एंड कोस्टल रीजन में जितने भी हमारे साउथ इंडियन कोस्टल रीजन है जो पानी के अंदर है, और डेल्टिक रीजन मतलब जहाँ रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती है। सो दीज आर द स्टेट्स वेयर राइस इज ग्रोन। Number one question for you guys is, you guys need to mention the name of these states which I have already mentioned. You guys again need to mention the same names in the comment section so that you can memorize the area where the rice is cultivated. Okay. Next we have wheat. Wheat is the second most important cereal crop. मतलब wheat, हम गेहूं की बात कर रहे हैं। गेहूं अगेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो कि इंडिया में खाया जाता है, लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, सो मेनली दिस फूड क्रॉप इज कंज्यूम्ड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, और मेन रीजन कौन सा है इसका, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ में अगेन रीजन्स लाइक हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एंड नॉर्थ वेस्टर्न इज टुवर्ड्स द राजस्थान साइड। ओके, so now let's talk about which type of crop it is. It is a rabi crop. Okay, and being a rabi crop, it requires cool growing season. rabi crop कब उगाते हैं हम, सर्दियों में, तो कैसा सीजन चाहिए इसको, ठंडा सीजन। therefore cool growing season, and plus में इसको bright sunshine चाहिए, खूब धूप चाहिए इसको at the time of, तब ये पकती है। गेहूं तब पकनी स्टार्ट होती है। गेहूं कब हार्वेस्ट करते हैं हम, इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल। तब तक गर्मियां अच्छी खासी शुरुआत पकड़ चुकी होती है और अच्छा बड़ा सूरज निकलना शुरू हो जाता है। ओके, सो राबी क्रॉप है, ग्रोइंग सीजन क्या रहेगा, सर्दियां। हार्वेस्टिंग सीजन क्या रहेगा, जब ये पकती है, राइपनिंग होना स्टार्ट हो जाती है इस फसल की। इट इज द टाइम व्हेन वी हैव ब्राइट सन। ओके, देयरफॉर मेकिंग इट अ राबी क्रॉप। ये तो रिक्वायरमेंट है राबी क्रॉप की, सर्दियों में लगेंगे और इन दी मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जून हार्वेस्ट हो जाती है। तो सेम है ये कंडीशन। ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेनफॉल कंडीशन, कि पानी कितना रिक्वायरमेंट है इस क्रॉप की, कि कितना पानी चाहिए, इट इज अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल। ओके, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पानी की, देयरफॉर हमारे रीजन में व्हीट बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। देन वी हैव मिलेट्स। जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ओके, तो जब हम इन मिलेट्स की बात करते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन क्यों, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ओके, जब आजकल आपने देखा होगा मार्केट के अंदर न्यूट्री चॉइस मल्टीग्रेन हमारा व्हीट मिलती है, आटा। ओके, सो आपने देखा है विद टाइम काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है इनकी। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनकी। बाजरा विलेज रूरल एरियाज में बाजरा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ओके, क्यों, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, देन वी हैव ज्वार, रागी। विल सी ईच ऑफ देम इन ब्रीफ नाउ। टॉकिंग अबाउट रागी, रागी क्यों इतना इम्पोर्टेंट और न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए हाई कंटेंट समझा जाता है, इट इज़ बिकॉज रागी इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। रागी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। देयरफॉर मेकिंग रागी अ वेरी हाई न्यूट्रिशनल value crop. Okay, then we have jowar. Jowar is the third most important food grain. Okay, number one was rice, second was wheat, and the third most important food grain is jowar. Okay, तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया, कितने एरिया में उगाया जाता है या कितनी इसकी प्रोडक्शन होती है, तो उसके बेसिस पे इसको थर्ड रैंक दी गई है। ओके, तो क्वेश्चन आए द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन ऑफ इंडिया, the answer is jowar. Okay, now let's discuss more about millets. So talking about millets,
These are the rain fed crops, मतलब उन एरिया में होती है जहाँ बारिश अच्छी होती है, नेचुरली पानी आता है थ्रू द रेनफॉल। ओके, तो उन्हीं एरियाज में ये उगाए जाते हैं मोस्टली। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो मॉइस्ट रहेगा। ओके, पानी ज़्यादा है तो मॉइस्ट एरिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर स्टेट्स वेयर ज्वार आर ग्रोन। ओके, ज्वार जो कि एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है हमारा इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, उसकी मेजर स्टेट्स देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं। ओके, इट इज़ फाउंड मेजरली इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। दिस इज अकॉर्डिंग टू द 2011 एंड 12 डेटा, जो हमें बताता है कि मेजर स्टेट्स ऑफ ज्वार कौन कौन सी है, कौन कौन सी स्टेट्स में ज्वार बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ ज्वार, दीज आर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। देन वी हैव बाजरा। बाजरा इज वेल ग्रोन ऑन द सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। ओके, जब हमने ब्लैक सॉइल किया था, अनदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो कि ब्लैक सॉइल के रिगार्डिंग जानी जाती है, you guys need to comment in the comment section. Okay, this was your second question. आप ब्लैक सॉइल से रिलेटेड दूसरे हमारी इम्पॉर्टेंट क्रॉप का नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। तो बाजरा किस पे ग्रो किया जाता है? सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल पे। ओके, एंड मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है बाजरा की? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। Again, this data is according to the 2011 and 12 survey. Okay, and lastly we have ragi. Ragi, which is rich in iron and calcium content and other micronutrients. उस रागी की बात करेंगे कि कौन सी रीजन में उगाई जाती है and what are the condition. So ragi is grown in the dry region where there is red, black, sandy, loamy and shallow black soil. ओके, रागी के लिए कैसे सॉइल चाहिए? रेड और ब्लैक और सैंडी एंड लूमी और शैलो ब्लैक सॉइल। ओके, नाउ लेट्स सी द रीजन्स। टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ रागी, वी हैव कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड झारखंड। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड झारखंड. These are the producing states when it comes to the ragi. Okay. So we are discussing the major crops of India. We have next the maize. When we talk about maize, maize क्या है? मक्का. Okay, the corns. ये एक ऐसा क्रॉप है जो कि दोनों पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एज अ फूड प्लस एज अ फॉडर फॉर एनिमल्स. ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स भी इसको कंज्यूम कर लेते हैं, दोनों पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है. ओके, सो मेज इज अ क्रॉप यूज्ड एज बोथ फॉर फूड एंड फॉडर. अगेन, which type of crop it is? It is a kharif crop. Okay, therefore temperature will be a little higher. So temperature in this case will be 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius, and the type of soil it require is the old alluvial soil. कौन से टाइप का सॉइल चाहिए इसको? Old alluvial soil. So we have the state of Bihar which grow this crop, the maize, in the Rabi season. Okay, क्योंकि अलग प्लेस की अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग टेम्परेचर है, अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो लोग वहाँ फॉलो करते हैं. Therefore मेज एक ऐसा क्रॉप है जो है तो वैसे खारिफ क्रॉप, लेकिन बिहार के रीजन में, बिहार स्टेट के अंदर, दिस क्रॉप इज ग्रोन एज द राबी क्रॉप. ओके, राबी सीजन में उगाया जाता है ये. इरिगेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इसकी प्रोडक्शन ने, therefore this has led to, modern use of input has led to increase in the production of maize. Okay, then let's discuss which are the states producing this crop. Okay, so we have states like Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Telangana. These are the states which produce the crop called maize. Next we have pulses. Pulses मतलब जितनी भी हमारी दाल वगैरह है. Okay, so this is very important. India is the largest consumer as well as the producer of pulses in the world.
Question 9. Who is the largest consumer of pulses or who is the largest producer of pulses in the world? Answer is India. Okay. Now पल्सेस दाल क्यों कंज्यूम करते हैं? बिकॉज जो वेजिटेरियन है, जो कि नॉन वेज नहीं खाते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पे ही डिपेंड करते हैं, उनके लिए पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। वेजिटेरियन लोगों को मेजर प्रोटीन कहाँ से मिलता है? थ्रू पल्सेस, दाल से मिलता है। ओके, देयरफॉर वी द इंडियंस आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप पल्सेस। टॉकिंग अबाउट द मेजर पल्सेस या मेजर दाल कौन कौन सी होती है? अरहर की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम्स. These are the various type of dal that we have seen in our homes and also we are consuming this. Okay, there is nothing more to explain in this concept. Then we talk about the condition of pulses. Okay, pulses को ज़्यादा moisture नहीं चाहिए होता. Okay. Therefore, क्योंकि पानी इतना नहीं चाहिए pulses को, therefore it has the capacity to even survive in the dry condition. अगर सूखा भी पड़ जाता है तो ये क्रॉप खराब नहीं होती है, दाल की फसल खराब नहीं होगी, even it is in the dry condition. Okay. Next is being a leguminous crop. Leguminous मतलब जो जमीन के नीचे उगाई गई है. Okay. So this crop help us in रिस्टोरिंग दी सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल को दोबारा से फर्टाइल बनाने में बहुत मदद करती है. एज बीइंग द लेग्यूमिनस क्रॉप इट हेल्प्स टू रिस्टोर द नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. सॉइल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होता है एंड पल्सेस क्या हेल्प करती है कि वो नाइट्रोजन एयर से लेके वो जमीन में सॉइल को प्रोवाइड कर सके. ओके, देयरफॉर इट हेल्प इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी. It happens in every case, every pulses case except in the case of अरहर की दाल. अरहर की दाल में ऐसा नहीं होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर की जाए. ओके, अपार्ट फ्रॉम अरहर every dal is capable of restoring the soil fertility as it helps in taking the nitrogen from the air. Okay, so talking about pulses, these are the crops which are mostly grown in rotation with other crops. ये ऐसी फसलें हैं जो कि रोटेशन में कभी एक फसल उगा ली, उसके बाद पल्सेस उगा ली. ओके, इन रोटेशन उगाई जाती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स इन विच pulses are grown, we have the states of Maharashtra, UP, which is Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Karnataka. These are the states where pulses are grown. Okay guys, that's it for today's video. We have seen the major cropping pattern and the major crops, what are the condition, what are the regions where these crops are grown. It's time for the session Tone Your Brain. Guys, this session is basically for you guys to know what you have gained from this video. And the rules are, you need to comment all the answers in the comment section along with your name. Number one question of the day is, write down a short note on the crop rice. राइस क्रॉप के ऊपर छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है इन दी वर्ड्स अराउंड 30 to 50 वर्ड्स. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज 3 मेजर क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया. एग्जाम्पल के साथ लिखना है. मेजर पैटर्न क्रॉपिंग पैटर्न किए हमने 3 है इंडिया में और उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं. देन थर्ड क्वेश्चन वी हैव, यू गाइज नीड टू नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कौन है? एंड लास्टली यू नीड टू मेंशन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया. हमने डिस्कस किए मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, उसमें से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन आपको लिखना है. इट इज अ वन वर्ड आंसर ओनली. Okay guys, that's it for today's video. Thank you for watching and also do not forget to like, share and subscribe to my channel. And most importantly, if you like my video, please do not hesitate to press in the thumbs up icon as it will mean a lot. Thanks again for watching.